Hello everyone, welcome to World Student Scope. So here I am your English educator and today we are going to start our class 10th syllabus of CBSE NCERT. So basically we have two books of CBSE. One is First Flight and another one is our supplementary reader, that is Footprints Without Feet. So we are having these two books of class 10th and today we are going to start with the main textbook, that is First Flight, and another one is our supplementary reader, but now we are going to start with the main textbook. Okay, so our main textbook is First Flight. So these are the chapters that we will study in the whole session. First chapter is A Letter to God. First chapter is A Letter to God, which is written by G.L. Fluence. Next, along with that, there are two poems. One is Dust of Snow, which is written by Robert Frost, and another one is Fire and Ice, which is also written by Robert Frost. So these two poems is in the first chapter. So first chapter includes one chapter as well as one story as well as two poems. Second chapter is Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, written by Nelson Rolihlahla Mandela. And along with that there is one poem, A Tiger in the Zoo, which is written by Nestle Norris. Our third chapter is two stories about flying. Two stories means, so there are two different stories. First is His First Flight, written by Liam O'Flaherty. इसमें क्या आएगा, हमारी दो जो हैं वो स्टोरीज कवर्ड होंगी एक चैप्टर में along with the poem. सेकेंड पार्ट क्या आएगा इसमें, ब्लैक एरोप्लेन. सेकेंड पार्ट में आ जाएगा हमारा ब्लैक एरोप्लेन, which is written by Frederick Forsyth. And along with that, one poem, two poems are there. How to Tell Wild Animals, which is written by Caroline Wells, and next is the Ball poem, which is written by Johan Berryman. So fourth one is From the Diary of Annie Frank, written by Annie Frank, and poem Amanda, written by Robin Klein. Fifth is The 100 Dresses, written by Eleanor Estes. The 100 Dresses 2. फिफ्थ चैप्टर में फर्स्ट पार्ट था ड्रेसेस का वन पार्ट एंड सेकंड में हमारा सिक्स चैप्टर में सेकंड पार्ट कवर होगा, रिटन बाय एलिनोर एस्टेस, along with one poem Animals, which is written by Walt Whitman. Seventh one is Glimpses of the Past. First one is Baker from Goa, which is written by Lucio Rodriguez, and second is Korg. Korg is written by Lokesh Abrol. Third is Tea from Assam, and Tree of Assam is written by Arup Kumar Dutta, along with one poem, The Trees, which is written by Adrian Rich. Eighth chapter is Mitchell the Otter, written by Gavin Maxwell, along with one poem which is Fog, written by Carol Sandburg. Our ninth chapter is Madame Rides the Bus, written by Valley Cannon, and along with the poem The Tale of Custard the Dragon, written by Arjun Nash. Our 10th chapter is The Sermon at Banners for Anne Gregory. Okay, and along with which is written, this Anne Gregory is a poem which is written by William Butler Yeats. Last is The Proposal. 11th chapter is The Proposal, which is written by Anton Chekhov. So here are total of 11 chapters. We will, in the book we will cover one by one. So and today we are going to start our first. So today we will start with the first one, which is A Letter to God, written by G.L. Fluence, and along with the two poems Dust of Snow and Ice and Frost. See, so our name of the book is The First Flight, class 10th, chapter 1. A Letter to God. Now I would like to ask you one thing, a letter to God.
कोई भी एक लेटर है वो हम गॉड तक पहुंचा सकते हैं, एज कि हमारे पास कोई एड्रेस नहीं होता, उनका कोई पता नहीं है वो कहाँ रहते हैं, सो हम कैसे उनके तक पहुंचा सकते हैं। बट ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, ये इसी के बेस पे है, अ लेटर टू गॉड। नाउ इट विल बी इंटरेस्टिंग, इवन मोर इंटरेस्टिंग टू सी कि ये जो लेटर है वो गॉड तक पहुंचता है या नहीं है। तो इस स्टोरी में पढ़ते हैं कि क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अब ये कहते हैं कि अगर हमारे पास फेथ हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इवन हम भगवान को भी पा सकते हैं अगर हमारे में फेथ है। अगर हमारे में फेथ है तो हम जो माउंटेन्स हैं उसको भी जो है मूव कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक फेथ है, एक विश्वास है, एक आस्था है। सो फेथ, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हमें अपना फेथ किस में डालना चाहिए? वो जो आस्था है वो एक सही चीज में अगर हम डालेंगे तो आई थिंक कि हमें कुछ आउटपुट भी मिल पाएगा, राइट? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। अब हमने देखना उसका जो फेथ था गॉड को लेकर, जो उसने जो भी पर्सन है, मेन कैरेक्टर है, उसने जो लेटर भेजा है गॉड को, वो गॉड तक पहुंचा, अगर पहुंचा तो कैसे पहुंचा, और गॉड ने उसको रिवॉर्ड बैक किया या नहीं किया। तो हम, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी हमारी, ये देखना कि जो लेटर वो गॉड को भेज रहे हैं, क्या गॉड को वो लेटर रिसीव हो रहा है और क्या उसको रिवर्ट बैक मिलता है। सो लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो लेंचो है वो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। लेंचो जो क्या है, एक फार्मर है। लेंचो एक फार्मर है जिसने गॉड को एक लेटर लिखा है। When his crops are ruined, अब ये crops are ruined means destroyed, ruin होता है destroy होना। So वो बोल रहे हैं कि उसने, जो एक फार्मर है, उसने गॉड को लेटर लिखा कब? When his crops are ruined, जब when his crops are destroyed, जब उसकी जो crops हैं वो destroy हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो वो जो लेटर है वो गॉड को लिखता है, asking for 100 pesos। अब पैसो क्या होता है? करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज होती हैं उसकी करेंसी होती है पैसो। सो ये जो पैसो है वो बोल रहे हैं कि कितनी अमाउंट उन्होंने गॉड से मांगी है, कितनी? 100 पैसो। अब वो जो लेटर लिखा है गॉड को, उस लेटर में उसने यही लिखा है कि उसको नीड है कितनी मनी की? 100 पैसोस की। सो डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। सो अब ये कहना भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक जो लेटर अगर हम रैंडमली अगर लिख दें गॉड को तो वो गॉड तक पहुंच जाए। सो डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? डज गॉड सेंड हिम द मनी? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस would be and guess how the story continues before you begin to read it। अब हमने ये देखना है कि जो लेटर उसने गॉड को भेजा, अब कोई भी इंसान गॉड को लेटर क्यों भेज सकता है, कैसे भेज सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर हम लेटर लिखते हैं, लेटर लिख के हम पोस्ट ऑफिस में देकर आते हैं, तो इट मीन्स कि जो हम पोस्ट ऑफिस में देकर आएंगे उसमें जो एड्रेस भी तो कुछ मेंशन होगा। अगर उसमें कुछ एड्रेस मेंशन होगा तो वो क्या एड्रेस होगा? चलो अगर हम कोई भी एड्रेस, अगर चलो हम सपोज भी कर ले कि अगर हम एड्रेस डाल देते हैं, तो अगर हम ये मान लें कि उसका एक बहुत फेथ था भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर, कि उसने एक पूरी लेटर लिख दी गॉड को जिसके लिए वो डिमांड कर रहा है फॉर 100 पैसो। सो अगर वो इस डिमांड कर रहा है और वो उसने लेटर जो है वो गॉड को लिख दिया है, तो जो गॉड है क्या वो रिसीव कर पाएंगे वो लेटर? और अगर वो रिसीव कर पाएंगे तो क्या वो उनको मनी भेजेंगे, पैसे वापस से भेजेंगे? और क्या उनको उसका रिवर्ट बैक मिल पाएगा अपने लेटर का? सो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो इफ द गॉड हैव रिसीव्ड हिज लेटर और नॉट। So according to me, this is not possible to write a letter and we are sending to God without knowing his address and without knowing anything. So without him, about him, sorry. So without knowing anything, we can't send anything to God. अगर हमें कुछ पता ही नहीं, हम क्या भेज देंगे? तो एड्रेस कुछ नहीं पता, हमें ये नहीं पता वो कहाँ रहते हैं,
तो हम उसको गॉड को कभी भी लेटर नहीं भेज सकते। बट वन थिंग वी आर हैविंग द फेथ, हमारे में एक चीज होती है फेथ, एक विश्वास होता है। माइट बी वो जो विश्वास है जिसके पास वो लेटर पहुंचेगा वो उनको उनकी कुछ हेल्प कर पाए या वो उनकी किसी चीज़ में कोई जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाए। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो गॉड को लेटर पहुंच जाएगा एंड गॉड विल सेंड हिम मनी, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज इम्पॉसिबल। सो लेट्स फाइंड आउट कि गॉड को उनका लेटर मिलता है या नहीं मिलता। सो एक्टिविटी है एक छोटी सी, हियर इज एन एक्टिविटी। One of the cheapest ways to send money to someone is through the post office. सबसे ज़्यादा cheapest way है if we want to send money to our friend, to our relative, to our parents, to our siblings. One of the cheapest way is to send through post office. तो हम post office के through जब हम send करते हैं कोई money तो वो बहुत cheapest way है जिसमें हमारे ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। So have you ever sent or received money in this way? Here's what you have to do. See, अगर आपको पता है कि सबसे cheapest way होता है अगर हमने किसी को कोई पैसे भेजने हैं, इवन कोई छोटा मोटा सामान भी भेजना है तो हम पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं। तो क्या आपने कभी भेजा है या कभी रिसीव किया है? So let's find out कि अगर हमें कभी भेजना हो तो हम कैसे भेज सकते हैं। As you read the instructions, discuss with your teacher in the class the meanings of these words: counter, counter clerk, appropriate, acknowledgement, counterfoil, record. Consult a dictionary if necessary. Are these words corresponding to these English words in your languages? See, ये जो हमें words given है, ये सारे words जो है वहाँ पे मिस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट जो है, कुछ रोल है वो प्ले करते हैं। जैसे एक्नॉलेजमेंट हो गया, वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट होता है, काउंटर फॉइल, रिकॉर्ड के लिए हमें कुछ मिलता है, एप्रोप्रिएट हमें हमसे डिटेल्स मांगी जाती हैं, काउंटर क्लर्क होते हैं, एक मेन काउंटर होता है। ओके, सो हियर यू कैन सी इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, गो टू द काउंटर मार्क्ड एज मनी ऑर्डर। तो सबसे पहले जब हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं हमें एक काउंटर देखना होता है जिसमें क्या लिखा होता है, एज स्टेटेड मनी ऑर्डर। तो जहां मनी ऑर्डर लिखा होगा हमने उस काउंटर पे जाना है पोस्ट ऑफिस में। बाय अ मनी ऑर्डर फॉर्म बाय पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर। तो हमने क्या करना है, उनसे एक मनी ऑर्डर फॉर्म, जो मनी ऑर्डर फॉर्म है वो उनसे ले लेना है। कितने पैसों का? जस्ट 50 पैसे। 50 पैसे से हमने उनसे एक मनी ऑर्डर फॉर्म बाय करना है। एंड आफ्टर दैट हमें क्या, वो हम जो मनी ऑर्डर फॉर्म है वो कहाँ से लेंगे? द पर्सन हु इज सिटिंग बिहाइंड द काउंटर, जो काउंटर के पीछे बैठा है हमने उससे क्या लेना है? मनी ऑर्डर फॉर्म। आफ्टर दैट fill in the appropriate boxes in the form, preferably in the block letters. तो वो जो फॉर्म होगा उसमें हमने appropriate डिटेल्स डालनी है। नेम ऑफ द पर्सन, अगर नेम ऑफ द पर्सन, छोटी मोटी जैसे भी डिटेल्स हैं, तो कितने पैसे हैं, एग्जैक्ट डिटेल्स जो appropriate डिटेल्स हैं, वी कैन से वी हैव टू मेंशन इन दैट मनी ऑर्डर फॉर्म। सो प्रेफरेबली इन द ब्लॉक लेटर्स, प्रेफरेबली हम उसको ब्लॉक लेटर्स में ही लिखते हैं ऑल द डिटेल्स। नेक्स्ट, पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट टू बी सेंट अलोंग विद द चार्जेस। अब हमने क्या करना है, जो काउंटर क्लर्क होगा वहां पे हमने उसको जितने पैसे, द अमाउंट वी वांट टू सेंड, वो हम उसको दे देंगे किसको? मनी काउंटर को। वी विल गिव दैट टू मनी काउंटर ऑल द मनी दैट वी वांट टू सेंड टू आवर रिलेटिव और आवर फ्रेंड और एनीवन एल्स विद द चार्जेस। जितने भी चार्जेस लगेंगे उसके साथ हमने उनको सारे पैसे दे देने हैं। टेक बैक द MO एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल फॉर योर रिकॉर्ड। आपने कभी अगर बैंक में गए हो तो आपको पता होगा कि जब हम बैंक में नाउडेज अगर हम जब पैसे इवन डिपॉजिट करवाने जाते हैं, जैसे हमारे पास चेक है, हमने किसी के बैंक में वो डिपॉजिट करवाने, खुद के बैंक में ही चलो हमने डिपॉजिट करवाना है, तो क्या होता है, हमें सारी डिटेल्स बहुत एप्रोप्रिएट, बहुत करेक्ट, बहुत एग्जैक्ट डिटेल्स हमें जो है वो मेंशन करनी पड़ती हैं। लाइक नेम ऑफ द पर्सन, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर विच इज़ अ मस्ट। तो वो बैंक अकाउंट नंबर अगर एक भी डिजिट जो है वो गलत हो गया तो वो हमारे जो पैसे हैं हमें
नहीं मिल पाएंगे, वो किसी और अकाउंट में जा सकते हैं। सो बैंक अकाउंट डिटेल्स मस्ट बी एप्रोप्रिएट। सो हमने जो सारी डिटेल्स है वहाँ पे मेंशन करनी है, कितने पैसे हम करवा रहे हैं, सारा डिटेल्स जो है वो हमने एप्रोप्रिएट डालनी होती है वहाँ पे। एंड आफ्टर दैट जैसे हम वो फॉर्म जो है वो उनको दे देते हैं वापस से, हमें एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है जो कि हमारे रिकॉर्ड के लिए होती है, जिसमें हमारे बैंक की स्टैंप भी लगी होती है। उस टाइम से हमें क्या फ़ायदा होता है उस एक्नॉलेजमेंट का कि हमें रिकॉर्ड रहता है कि हमने कितने पैसे जो हैं वो सबमिट करवाए थे या डिपॉजिट करवा चुके हैं हम बैंक में। तो कितने पैसे हमने डिपॉजिट करवाए हैं वो हमारे पास एक रिकॉर्ड रह जाएगा, कितनी डेट को करवाए हैं, कौन से बैंक में करवाए हैं, कितने करवाए हैं और किस बैंक अकाउंट में करवाए हैं, वो सारी डिटेल्स हमारे पास रहती हैं just for the future. Think about who you will send the money to and how much. You might want to send money for a magazine subscription or a relative or a friend. See, अगर आप लोगों ने कभी भी ये नहीं किया है, कभी भी जो मनी है वो सेंड नहीं की है, डिपॉजिट नहीं करवाई है, so just go at once and submit the money. चाहे किसी के बैंक अकाउंट में ही करवा दो, लेकिन go at once to the post office और सबमिट करवा के देखो। You may fill out the form with yourself as a sender. आप उस तरह से फॉर्म भी फिल कर सकते हो to assume yourself as a sender and your partner as a receiver. And use a part of your pocket money and submit the form at the nearest post office. अब अपनी पॉकेट मनी का एक छोटा सा जो थोड़ा सा हिस्सा है उसको दे सकते हो, यूज़ कर सकते हो and submit the form at the nearest post office. तो वो जो फॉर्म है अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर सबमिट करवा के आ सकते हो। टू सी हाउ इट्स डन, सी हाउ योर पार्टनर एंजॉयज गेटिंग मनी बाय पोस्ट। अब पोस्ट ऑफिस में जाकर ये चीज़ करोगे, यू विल कम्स टू नो कि जो पैसे हैं वो कैसे हम डिपॉजिट करवाते हैं। अगर हमने किसी को सेंड करने हैं तो हम कैसे सेंड करते हैं किसी को, चाहे हमारे रिलेटिव्स हैं, चाहे हमारे फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई भी है, तो कैसे हम उनको सेंड करते हैं थ्रू पोस्ट ऑफिस। Notice that the form has 3 parts. अब ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। It's really very important to understand the form has mainly the 3 parts, 3 main parts. First one is money order form. अगर हम पहले की बात करें तो हमारा पहला स्टेप जो रहता है वो होता है मनी ऑर्डर फॉर्म। पहले आ गया हमारा मनी ऑर्डर फॉर्म, द पार्ट फॉर ऑफिशियल यूज़। यहाँ पे हमने अपनी सारी डिटेल्स डाल दी, उसके बाद जो आएगा वो पार्ट होगा ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ मीन्स जो उनके लिए रहता है कि उनको इवन वो डिक्लाइन भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो। नेक्स्ट जो होता है उसमें ऑफिस यूज़ होते हैं जिसमें उनके साइन भी मैंडेटरी होते हैं, स्टैम्प मैंडेटरी होती है, एंड एट लास्ट एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का क्या यूज़ होता है? एक्नॉलेजमेंट में आपको ये पता चलता है कि आपने कितने पैसे जो हैं वो सेंड किए हैं अपने एक रिकॉर्ड के लिए, काइंड ऑफ रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड के लिए आपके पास एक्नॉलेजमेंट जो है वो मस्ट है, मैंडेटरी है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। द ओनली वन, अब जो घर की बात कर रहे हैं, इट्स द ओनली वन इन द इंटायर वैली मीन्स इन द होल वैली। इंटायर मीन्स होल वैली। सो द ओनली वन इन द होल वैली sat on the crest of a low hill. Sat on the crest. Crest क्या होता है? Top of the hill. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो उनका वैली बता रहे हैं, It's on the crest of a low hill. Top of the low hill. Low hill के बिल्कुल टॉप पे है जो. From this height, one could see the river. अब इतनी जो हाइट है, इतनी टॉप पे है वो, तो एक जो कोई भी पर्सन है वो क्या देख सकता है? इतनी हाइट से हम क्या देख सकते हैं? नीचे अपनी जो फील्ड्स हैं वो देख सकते हैं, रिवर देख सकते हैं, रोड देख सकते हैं. सो वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. राइप कॉर्न होते हैं विच इज ऑलमोस्ट रेडी टू हार्वेस्ट, जो ऑलमोस्ट रेडी होते हैं. सो द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द flowers
दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। जो उसकी फील्ड है राइप कॉर्न की, जो रिवर देख पा रहा है वो, और जो अपनी फील्ड देख पा रहा है राइप कॉर्न की, विच इज ऑलमोस्ट रेडी टू हार्वेस्ट, जो उससे ये प्रॉमिस कर रही है। अच्छा, उसके ऊपर ना फ्लावर्स भी हैं, जो राइप कॉर्न्स है ना उसके ऊपर, इट्स दैट वाज डॉटेड विद द फ्लावर्स। तो वो क्या बोल रहे हैं, दैट वाज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो उसको क्या लग रहा है कि इस बार जो उसकी फसल की कटाई होगी वो बहुत अच्छी होगी। The only thing the earth needed was a downpour। अब वो क्या बोल रहे हैं, एक जो अकेली चीज जो अर्थ चाहती है was a downpour or at least a shower। डाउनपोर क्या होता है, एक हैवी फॉल ऑफ रेन, हैवी फॉल ऑफ रेन चाहती है। एक हैवी फॉल ऑफ रेन हो गई है, इवन एक शॉवर भी हो गया ना बारिश का, तब भी वो एक गुड हार्वेस्ट के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाए, एकदम रेडी हो जाएगी। So the only thing the earth needed was a downpour or at least a shower throughout the morning। लेंचो अब कह रहे हैं कि throughout the morning, पूरी जो मॉर्निंग थी, वो जो लेंचो है वो क्या कर रहा है, who knew his fields intimately, जो अपनी फील्ड्स को जानता है, intimately had done nothing but see the sky towards the north east। अब सुबह से वो जो लेंचो है, he has done nothing since morning except he was looking at the sky towards the northeast। अब वो आसमान को देख रहा है, स्काई पे देख रहा है, towards the northeast की साइड पे आसमान को देख रहा है, और उसने मॉर्निंग से कुछ भी नहीं किया है। Now we are really going to get some water। woman, अब वो वुमेन किसको बोल रहे हैं, जो उसकी वाइफ है उसको बोल रहे हैं कि शायद अब हम we are going to get some water। some water means some rain, some good rain, कि अब उसको ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। So now we are really going to get some good rain। woman, the woman who was preparing supper। supper क्या होता है, supper an evening meal, एक evening meal को हम बोलते हैं supper। replied, अब वो जो अपना इवनिंग मील जिसको हम डिनर कह सकते हैं, वो जो डिनर प्रिपेयर कर रही है उसकी वाइफ, वो क्या रिप्लाई करती है कि यस गुड विलिंग द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। वो जो उसके ओल्डर बॉयज थे वो क्या कर रहे हैं, जो खेत हैं उसमें काम कर रहे हैं, जो फील्ड है उसमें काम कर रहे हैं वो जो बॉयज हैं। while the smaller ones were playing near the house, और जो छोटे हैं वो जो है वो क्या कर रहे हैं, घर के आसपास खेल रहे हैं। they were playing near the house, तो वो घर के आसपास खेल रहे हैं, और जो बड़े हैं लड़के वो क्या कर रहे हैं, वो फील्ड में काम कर रहे हैं। until the woman called to them all come for dinner। अब वो सारे खेल रहे थे और वो अपनी फील्ड में वर्क कर रहे थे, until जब वो उसकी जो वुमेन थी उसने बोल दिया कि come for the dinner, कि डिनर के लिए आ जाओ। अब उसने बोल दिया कि डिनर के लिए आ जाओ। What it was during the meal that, अब जो मील है डिनर टाइम है, डिनर टाइम में क्या होता है, as just as Lancho had predicted, जैसे ही एक लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था, जैसे ही लैंचो ने डिसाइड मीन्स सोचा था, तो क्या होता है, एज लैंचो हैज प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। जो बिग ड्रॉप्स होती हैं बारिश की, बारिश जो है वो पड़ना स्टार्ट हो जाती है, बिगिन टू फॉल। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और अगर वो जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड में देख रहा था स्काई में, तो क्या होता है, इन द नॉर्थ ईस्ट साइड ह्यूज माउंटेन्स वो देख सकता है, जहाँ पे क्लाउड्स है, बादल वो देख सकता है। कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो वो अप्रोच कर रहे हैं, मीन्स उससे ये हो रहा है कि बारिश जो है वो अच्छी बारिश पड़ जाएगी उसकी फील्ड में। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और यूजुअली ऐसा होता है जब बारिश का मौसम होता है, जो एयर होती है वो बहुत फ्रेश होती है, बहुत स्वीट होती है, बहुत प्लीजिंग होती है। The man went out for no other reason, अब जो the man who went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed। अब जो वो जो मैन है, वो जो लैंचो है, वो क्या करता है, वो बाहर चला जाता है, क्यों,
उस जो मौसम होता है उसको फील करने के लिए, जस्ट टू फील द प्लेजर ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी। एंड व्हेन ही रिटर्न बैक ही एक्सक्लेम, जैसे वो वापस आते तो वो क्या बोलते हैं, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। तो उसको ऐसा लगता है जब वो बाहर जाता है उस मौसम का मीन्स कि उस मौसम में जाता है टू जस्ट टू फील दैट इन हिज बॉडी, तो वो क्या करता है जब वो वापस वहां से आता है उसको क्या लगता है कि वो जो बारिश थी वो एक्चुअली बारिश नहीं थी, दीज वर नॉट रेन ड्रॉप्स falling from the sky, they are new coins. The जो big drops are 10 cent pieces, जो बड़ी बड़ी बूंदें पड़ रही थी बारिश की वो big cent pieces थे, और जो छोटी छोटी बूंदें थी वो थी 5 cent pieces. With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers. Now with a satisfied expression, एक satisfied expression के साथ he just regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly, अब उसको ऐसा लगता है कि वो जो उसके जो ripe corn field है वो क्या होती है, it's covered with the flowers draped in a curtain of rain, की एक curtain में जो है वो covered हो गए हैं, ड्रैप हो गए हैं। बट सडनली जैसे वो ऐसे सोचता है, मीन्स जैसे हल्की ही बूंदाबांदी होती है, तो उसके बाद क्या होता है, strong wind began to blow and along with the rain, अब बहुत ज़्यादा strong जो wind होती है, हवा जो है बहुत ज़्यादा चलनी स्टार्ट हो जाती है, तेज़ हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है, and along with that the rain, very large hailstones begin to fall. उसके साथ ही जैसे हवा चलती है इतनी ज़ोर से, strong wind, as a strong wind begin to move, begin to blow, along with that the hailstones begin to fall. अब जो hailstones होते हैं वो क्या होते हैं, एक आइस बॉल होती है, fall from the sky like rain, एक बारिश की तरह जो आइस बॉल्स होती हैं छोटी छोटी, जिसको हम गड़े भी बोलते हैं, तो वो जो है वो पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, it begins to fall. These truly did resemble new silver coins. अब वो उसको ऐसा लग रहा है कि these truly resemble, वो इकट्ठा हो रही हैं just like a new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब वो जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाहर आ जाते हैं just to means उस बारिश के मौसम को, उस वेदर को enjoy करने के लिए, and to collect the frozen pearls. अब वो frozen pearls किसको बोल रहे हैं, वो जो hailstorm होते हैं, जो छोटे छोटे गड़े होते हैं उसको पकड़ने के लिए वो बाहर आ जाते हैं, उनके साथ खेलने के लिए बाहर आ जाते हैं, just to enjoy the weather. It's really getting bad now, exclaimed the man. अब जैसे वो hailstorm हो रही होती है तो उसको क्या लगता है कि अब उसको डर हो रहा है, वो टेंशन हो रही है कि जो उसके राइप कॉर्न है शायद वो उसकी जो फील्ड है वो खराब ना हो जाए। सो वो क्या बोल रहा है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब ये मीन्स कि बुरा हो रहा है, कि अगर इससे ज़्यादा भी होगा तो मीन्स हो सकता है कि उसके लिए काफ़ी नुकसान हो जाए। एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। पहले वो ये चाहता था कि बारिश हो, जैसे वो पहले स्काई की तरफ देख रहा था उसको था कि कुछ रेनफॉल हो जाएगी तो जो उसकी राइप कॉर्न फील्ड हैं वो इट विल बी ऑलमोस्ट रेडी टू हार्वेस्ट। बट अब वो कह रहा है जैसे वो इतनी तेज़ बारिश हो रही है एंड हेलस्टॉर्म्स आर फॉलिंग डाउन, नाउ ही वांट दैट इट पासिस क्विकली, अब वो जल्दी से बस चले जाए, बंद हो जाए बस। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट इट डिडंट पास क्विकली, वो ऐसा चाहता था but it didn't pass quickly. For an hour the hail rained on the house. अब घंटों तक वो जो हेल है वो उसके घर के आसपास पड़ रही थी, उसके राइप कॉर्न फील्ड्स में पड़ रही थी। तो वो क्या देखता है, अच्छा उसके घर में, उसके गार्डन में द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली, पूरी वैली पे वो जो हेल्स थी वो उसने एक्सपीरियंस की पूरे 1 घंटे तक, जस्ट फॉर एन आवर। The field was white as if covered with salt. और जैसे वो जो हेल है वो बंद हुई, as it stopped down, what Lencho has observed, what he has observed that the field was white as if it's covered with the salt.
तो वो ऐसे देखता है, जो अपनी फील्ड को जब वो देखता है तो क्या दिखता है कि वो इतनी तरह से एक वाइट कवर हो जाती है पूरी फील्ड, जैसे कि वो सॉल्ट के साथ कवर्ड हो। लेंचो है, हिज सोल इज फुल्ड विद सैडनेस। अब वो बहुत परेशान हो गया, उसके जो कॉर्न है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी फील्ड जो है पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है। When the storm had passed, he stood in the middle and said to his sons. जैसे वो storm है वो पास होता है तो वो क्या करता है, stood in the middle of the field, वो अपनी फील्ड के बीच में सेंटर में खड़ा होता है, and said to his sons, और अपने बेटे को क्या बोल रहा होता है, a plague of locust. a plague of locust क्या होता है, इंसेक्ट होते हैं विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स। बिग स्वॉर्म्स मीन्स इन बिग ग्रुप्स, बड़े बड़े ग्रुप्स में जैसे होते हैं, एक इंसेक्ट होता है एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, और जो क्रॉप्स होती हैं उनको खराब कर देता है, बिगाड़ देता है। यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। सो अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अब उसको ऐसा लगता है कि जो फील्ड है उसमें जो प्लेग ऑफ लॉकस्ट हैं वो उससे ज़्यादा पड़े हुए हैं, जितनी भी उनके फील्ड में कॉर्न भी नहीं थे। The hail has left nothing. अब वो ये बोल रहे कि वो जो हेल थी उसने मेरी जो फील्ड है उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा। The hail has left nothing in his field. This year we will have no corn. Now he comes to know that this year we will have no corn because his fields have totally destroyed. That night was a sorrowful one. और जो उसकी वो नाइट थी वो बहुत ज़्यादा sorrowful थी, बहुत ज़्यादा, जिसमें वो बहुत काइंड ऑफ माइजरी, बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा दुखी था। So that night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will go hungry this year. अब उसको ऐसा लगता है कि we are left with nothing. Our crops have been destroyed. Our field is ruined. And we are left with nothing, and we will remain hungry this year, and no one will help us, कि हमारी कोई हेल्प भी नहीं करेगा, और इस साल हमें क्या करना पड़ेगा, भूखे ही रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ऐसे हमारा गुजारा जो कि है नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है। सो रिलेटेड टू दिस वी आर हैविंग कॉम्प्रीहेंशन चेक। What did Lencho hope for? अब जो लेंचो है वो किस चीज़ की उम्मीद कर रहा है, किस चीज़ की होप कर रहा है। Lencho had hoped for a downpour. He hoped for a downpour. Downpour क्या होता है? Downpour means heavy fall of rain. Downpour means heavy fall of rain, जिसको भारी बारिश बोलते हैं, heavy rain, fall of rain. Okay. So hoped for a downpour or at least a shower. अब वो बोल रहा है कि या तो डाउनपोर हो जाए या फिर एटलीस्ट शॉवर ही हो जाए बारिश का, फॉर हिज राइप कॉर्न फील्ड्स, उसकी राइप कॉर्न फील्ड्स के लिए, एज इट वॉज रेडी फॉर अ गुड हार्वेस्ट, जैसे कि वो ऑलमोस्ट रेडी थी एक गुड हार्वेस्ट के लिए। सो वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। अब जो लेंचो है उसको ऐसा क्यों लगता है वो जो रेन ड्रॉप्स हैं दे वर लाइक कॉइन्स, न्यू कॉइन्स। लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। अब यहाँ पे जो लेंचो है उसने उसको किस चीज से कंपेयर किया, टू न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स एज 10 सेंट पीसेस। अब उसने जो न्यू कॉइन्स उनको कंपेयर किया, he compared big drops as 10 cent pieces and the little ones and the fives. बिग को उसने 10 सेंट पीसेस के साथ कंपेयर किया और जो लिटिल ड्रॉप्स थी उसको उसने 5 सेंट पीसेस के साथ कंपेयर किया। एज हिज क्रॉप्स वर रेडी टू हार्वेस्ट, एज कि हमने इस स्टोरी में क्या देखा, जो उसकी क्रॉप्स थी इट वॉज रेडी टू हार्वेस्ट। He hoped that the rains would bring him prosperity, so he felt the raindrops were like new coins. उसको ऐसा लगता था कि जो बारिश होगी वो उसके खेत में बहुत अच्छी एक रिजल्ट लेकर आएगी, जो उसके खेत हैं उसमें बहुत अच्छी रिजल्ट लेकर आएगी, जो कि कटाई के टाइम पे बहुत उसकी अच्छी हो जाएगी। क्या हो जाएगी अच्छी, जो उसके कॉर्न फील्ड जो थी, लेकिन वो क्या होता है उसको उसी चीज को उससे कंपेयर करता है न्यू कॉइन से, वो जो रेन ड्रॉप्स थी।
नेक्स्ट, हाउ डिड द रेन चेंज, अब जो बारिश है वो कैसे चेंज हुई. एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स, द रेन स्टार्टेड पॉरिंग डाउन, अब जो बारिश है वो पड़ना स्टार्ट हो गई, इट स्टार्टेड पॉरिंग डाउन, बट सडनली a strong wind blew and a very large hailstones like frozen pearls began to fall along with the rain. बट जैसे क्या होता है, एक बहुत तेज जो है हवा चलती है, हवा चलना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके साथ साथ ही क्या होता है, हेल स्टॉर्म भी आ जाते हैं. जस्ट लाइक फ्रोजन पर्ल्स होते हैं, जैसे जो बारिश जिसको गड़े बोलते हैं, तो वो जो फ्रोजन पर्ल्स की तरह दिखते होते हैं, begin to fall along with the rain, तो बारिश के साथ साथ वो भी पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं. The hailstorm continued for an hour and destroyed Lencho's corn fields, और जो hailstorm होते हैं वो continuously 1 hour तक जो है वो continue रहते हैं, and it destroyed Lencho's field, corn field, and washed away the flowers from the plants too. और वहाँ से कहते हैं हम जो plants होते हैं उसमें छोटे छोटे flowers होते हैं, तो वो जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं उसको भी अपने साथ वॉश अवे कर देता है, वो भी जो फ्लावर्स होते हैं वो भी टूट के गिर जाते हैं नीचे. What were Lencho's feelings when the hail stopped, अब जैसे ही वो जो हेल है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, जो लेंचो है वो कैसा फील करता है. After the hailstones stopped, Lencho's soul was filled with grief and dismay, अब जो लेंचो है his soul was just filled with sadness, filled with misery, filled with grief. He realized that everything was ruined by the hailstorm and nothing was left to feed his family for the entire year. उसको ऐसा लगता है कि ये जो बारिश थी, ये जो हेल्स थे, इसकी वजह से जो उसकी पूरी जो राइप कॉर्न फील्ड थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है, और इस साल पूरा ईयर वो अपनी जो फैमिली है उसको क्या फीड करेगा, उनको क्या खिलाएगा, एंड उसको ऐसा लगता है कि कोई उसकी हेल्प भी नहीं करेगा. सो ही कुड विजुअलाइज द ब्लीक फ्यूचर ऑफ हिज फैमिली, तो वो अपना जो एक बहुत बुरा फ्यूचर है, एक जहाँ पे ही माइट लीड टू द स्टारवेशन, तो वो जो है उसको भी फील कर पा रहा है कि उनको भूखे रहना पड़ सकता है फॉर द इंटायर year just because his ripe corn has been destroyed. Next is, but in the hearts of all who lived in that solitary house, but वो क्या होता है, but in the hearts of all who lived in that solitary house, solitary होता है single, कि वो जो इंटायर वैली में एक जो अकेला घर था जहाँ पे वो लेंचो रहता था along with his family, वो क्या बोलता है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सिंगल हाउस इन द मिडल फॉर द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. तो उसको ऐसा लगता है वो जो सब वहाँ पे रहते होते हैं उस सिंगल जो वहाँ पे घर होता है, सॉलिटरी हाउस होता है इन द मिडल ऑफ द वैली, उनके पास एक सिंगल होप जो है फिर भी बची हुई है. एंड व्हाट्स दैट होप, हेल्प फ्रॉम द गॉड, कि वो भगवान से, उनको ऐसा लगता है कि हम उस भगवान से हेल्प ले सकते हैं. Don't be so upset even though this seems like a total loss. तो उनको ये कह रहे हैं कि इतना अपसेट मत हो, इतने सैड मत हो, even though कि जो हमारी पूरी फील्ड है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है. Though this seems like a total loss, हमें ऐसा लग रहा है कि टोटल एकदम पूरा लॉस हो गया, बट स्टिल तुम्हें सैड नहीं फील करना चाहिए. Remember, no one dies of hunger. और याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरेगा, एंड उनके पास एक फेथ है, वो फेथ है गॉड. What they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of this one hope. अब वो जो उसने सुना था कि उसके पास एक होप है, लास्ट होप जो फिर भी उसके पास है, and that is help from the God. Now he continues to think about that hope all over the night, that about the help from the God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience and inner sense of right and wrong. ऐसे कि बोल रहा है कि हम ऐसा बोलते हैं कि भगवान की आंखों से, नज़रों से कुछ नहीं बचता, भगवान की नज़रों से कुछ नहीं छुपा हुआ.
सो उसको ऐसा लगता है कि एज गॉड नोज एवरीथिंग, वी ऑल्सो नो दैट गॉड नोज एवरीथिंग एंड ही इज वॉचिंग ऑल ऑफ अस, दैट व्हाट वी आर डूइंग इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में क्या हम कर रहे हैं, व्हाट हैज़ बीन डन, क्या हो गया है। अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है, किसी का लॉस हुआ है, तो गॉड नोज एवरीथिंग, तो वो जो भगवान है वो सब जानते हैं। तो वो ये बोलता है कि इसके भगवान है जो सब जानते हैं, उसका एक फेथ है भगवान के ऊपर, तो वो बोलता है कि उनको सब जानते हैं, इवन व्हाट इज डीप, कि हमारे जो अंदर भी हमारे क्या चल रहा है वो ये भी जानते हैं। इवन ही नोज हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो उसको एक फेथ है भगवान के ऊपर कि वो जो भगवान है उसको ड्यू टू हंगर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, जो लेंचो था एक ऑक्स था मैन का। काइंड ऑफ ऑक्स किससे कंपेयर किया है कि ही यूज्ड टू वर्क फॉर द इंटायर डे इन हिज फील्ड, अपनी फील्ड में वो पूरा दिन काम करता रहता था, उसको इससे ऑक्स से कंपेयर किया हुआ है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो फील्ड्स में काम करते हैं, वैसे ही जो लेंचो था इस तरह से अपनी फील्ड में इतनी मेहनत से काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, अब वो फील्ड्स में ही काम करता था हमेशा, बट ही ऑल्सो न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको लिखना भी आता था। द फॉलोइंग संडे, अब जो नेक्स्ट उसके संडे था, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर। अब नेक्स्ट संडे की बात क्या बोल रहा है वो कि डे ब्रेक में, डे टाइम में वो क्या करता है, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो क्या करता है संडे को, वो क्या करता है डे ब्रेक में, he wrote a letter, वो एक लेटर लिख लिया उसने, and he sent that letter to God. अब वो गॉड को वो लेटर भेज रहा है, उसने क्या किया, खुद ही वो उसने लेटर लिखा, he wrote himself and he would carry to town and place in the mail. टाउन पे वो अकेला गया और मेल भी उसने अकेले ही खुद करके आया, and it was nothing less than a letter to God. क्यों जो उसने वो लेटर लिखा था, उस लेटर में जो भी उसने लिखा था वो किसके लिए था, it was for God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. अब उसने लेटर में क्या क्या लिखा है कि गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि मैं, मेरे साथ मेरी जो पूरी फैमिली है वो भूखी ही रहेगी फॉर द इंटायर ईयर। तो आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। अब वो क्या बोल रहा है, एक डिमांड रख रहा है भगवान के लिए, एक उनको एक डिमांड दे रहा है, क्या दे रहा है कि एक रिक्वायरमेंट शो कर रहा है कि दैट ही नीड 100 peso इन ऑर्डर। किस लिए अब वो 100 peso मांग रहा है, ताकि वो जो उसकी वो जो कॉर्न फील्ड्स थी वो जो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं उसको वो दोबारा से सो कर पाए, बीज सके उसको। तो उसके लिए एंड फॉर दैट ही नीड्स 100 peso and to live until the crop comes because the hailstorm। अब वो क्या बोल रहा है कि उसको तब तक, जब तक वो क्रॉप आएगी तब तक उसको मीन्स कि जो हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी क्रॉप जो है वो ख़राब हो गई है, इसलिए उसको दोबारा से सो करनी पड़ेगी। और जस्ट बिकॉज टू फीड हिज फैमिली एंड हिमसेल्फ ही वॉन्ट्स 100 pesos फॉर दैट। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। अब एनवेलप पे हम लिखते नहीं है टू, जिसको हमने लेटर लिखनी होती है तो उसने लिखा टू गॉड। ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अब जो लेटर है उस जो मेल बॉक्स है उसमें वो डाल देता है लेटर को, एंड ही वेंट टू टाउन। अब वो अपने टाउन पे वापस चला गया है। एट द पोस्ट ऑफिस, अब पोस्ट ऑफिस पे क्या होता है, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर। अब पोस्ट ऑफिस में उसने एक स्टैम्प लगा दी, एक स्टैम्प जो है वो लगा दी अपने लेटर पे, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और स्टैम्प लगाकर उसको मेल बॉक्स में डाल दिया जब वो कहाँ पे था, पोस्ट ऑफिस में।
वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन। अब क्या होता है, वहां पे एक एम्प्लॉय होता है जो कि पोस्टमैन होता है। सो वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। वो पोस्टमैन भी था, साथ के साथ वो पोस्ट ऑफिस में कुछ हेल्प भी कर देता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग। अब वो अपने बॉस के पास जाता है, हंसता हुआ जाता है, हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। और जैसे वो हंसता हुआ अपने बॉस के पास जाता है, ही शोड दैट लेटर विच वॉज फॉर गॉड। जो भगवान के लिए लेटर था वो उनको शो करता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन। अब वो बोलता कि उसने अपने करियर में एज अ पोस्टमैन उसने कभी भी ऐसी चीज नहीं देखी है, अ लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि उसने ना तो ऐसी कोई चीज देखी है, इवन ना ही कोई ऐसा एड्रेस उसने देखा है कि उसने गॉड को ही लेटर भेज दी, कि गॉड का तो एड्रेस किसी के पास नहीं भेज होता। सो हाउ ही कैन सेंड दिस लेटर टू गॉड। द पोस्ट मास्टर। अब जो पोस्ट मास्टर है, ही इज अ फैट एमिएबल फेलो। एमिएबल क्या होता है, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, बहुत फ्रेंडली सा और बहुत प्लीजेंट जो फेलो है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। अब वो जो है वो भी उसको देख कर कि जो गॉड के लिए एक लेटर लिखा हुआ है, वो भी ये देख कर क्या होता है, हंस पड़ता है उसके ऊपर, उस पर्सन के ऊपर, कि उसने गॉड को एक लेटर कैसे लिख दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, बट जैसे वो हंसता है, इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। और जैसे चलो वो हंस रहा था, एकदम उसके माइंड में कुछ आया, तो क्या होता है, वो एकदम सीरियस सिचुएशन में आ जाता है, एकदम सीरियस हो जाता है एंड टैप करता है लेटर को ऑन हिज डेस्क, कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। अब वो उसको फिर ये पता चलता है कि क्या फेथ है, क्या एक बिलीफ है, एक आस्था है भगवान के लिए, कि उसने भगवान को ही लेटर लिख दिया। सो व्हाट फेथ, अब वो ही बोल रहा है कि आई विश, अब मैं चाहता हूँ काश मेरे पास इतना फेथ होता कि मैं भगवान को एक लेटर लिख देता। सो आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। स्टार्टिंग up a correspondence with God. Now he started up a correspondence with the God. उनके corresponding उसके opposite. So in order not to shake the writer's faith in God. So in order not to break the writer's faith. अब जिसने वो लेटर लिखा है उसके faith को वो ना break down करते हुए वो क्या करता है? The postman came up with an idea. तो उसको ऐसा लगता है कि अगर उसके पास कोई रिवर्ट नहीं जाएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं जाएगा, कोई रिप्लाई नहीं जाएगा, तो इट माइट द पर्सन हु हैज रिटन दिस लेटर, इट्स हिज फेथ ऑन गॉड माइट ब्रेक डाउन। तो क्या वो हो सकता है उसका जो विश्वास है वो टूट जाए। सो ही केम अप विद एन आइडिया। तो उसके एक आइडिया आ रहा दिमाग में। लेट्स सी, आंसर द लेटर। अब आइडिया क्या आ रहा है कि वो आंसर करेगा उस लेटर को, उसका रिवर्ट करेगा उसको, उसके रिप्लाई में गॉड की जगह पे आकर उसको रिप्लाई करेगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंस दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। बट जैसे वो उसको खोलता है, उसको ओपन करता है, उसको क्या पता चलता है कि उसको एक गुडविल, एक अच्छाई की जगह पे उसको एक इंक पेन और एक गुडविल की जगह पे उसको किसी और चीज की भी जरूरत है। ही नीड मोर देन दिस इंक पेन एंड गुडविल। अब क्या चाहिए उसको? बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। अब जैसे वो लेटर में देखता है, अब उसको ये पता है कि अब इंक एंड पेन, अब वो लेटर लिख तो देगा, लेकिन जो उसकी डिमांड थी उस लेटर में वो क्या थी? ही नीड 100 पैसों। सो क्या करता है वो जो पर्सन है, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। अब वो अपने एम्प्लॉय से कुछ मनी जो है वो कर रहा है कि चलो थोड़ी मनी जो है वो थोड़ा डोनेट कर लो, थोड़ा सा कर देते हैं हम।
ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और इवन वो अपना भी अब सैलरी का कुछ पार्ट जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर देता है, और बाकियों को भी बोलता है थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन कर दो. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. एज फॉर एन एक्ट ऑफ, एक चैरिटी के नाम पे उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ जो है सबने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, और सबने कुछ कुछ अपना पार्ट जो है थोड़ा थोड़ा डालकर उसमें अपनी सैलरी में से निकाल के, अपनी जो सेविंग्स हैं उसमें से कुछ ना कुछ अपने पैसे जो हैं वो निकाल कर उसमें डाले, कंट्रीब्यूट किया. It was impossible for him to get together the 100 पैसों. अब जो है वो उस पर्सन के लिए भी इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू गैदर टू कलेक्ट 100 पैसों. अब उसके लिए भी एकदम से 100 पैसों कलेक्ट करने बहुत मुश्किल थे, इसलिए उसने क्या किया, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ. तो उसने क्या किया, जो वो फार्मर था उसने जो 100 पैसों मांगे थे लेकिन उनके पास 100 तो नहीं हो पाए, सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाफ से कुछ ज़्यादा पैसे जो उनके पास कलेक्ट हो गए थे उसने वही डाल दिए. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप. अब वो जो क्या करता है, जो पैसे हैं एनवेलप में डाल देता है, एड्रेस्ड टू लेंचो, और लेंचो के एड्रेस पे डाल देता है. And with it a letter containing only a single word as a signature. और जो लेटर है वो कंटेन होता है एक सिंगल वर्ड से, और वो वर्ड क्या होता है, उस पर लिखा हुआ सिग्नेचर के तौर पर गॉड. कॉम्प्रिहेंशन चेक. अब देखो उसको जितने भी उनसे हो पाए पैसे, उन्होंने उतने पैसे जो है उसकी कंट्रीब्यूशन करके सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, एक रिकलेक्ट अपना कलेक्ट करके पैसे जितने भी उनके पास हो पाए. इवन जो उनके पास 100 पैसों की डिमांड थी उसकी लेंचो की, वो तो नहीं कंप्लीट हो पाई, लेकिन उनसे जितने हो पाए उन्होंने उतने करके उस एनवेलप में डालकर एक ऊपर नेम लिख दिया एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड. एक सिंगल वर्ड था जो कि गॉड. सो इससे रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट वन इज हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन. अब जो लेंचो उसका फेथ किस पे था, व्हाट डिड ही डू. सो लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड. जो लेंचो था उसका बहुत ही ज़्यादा विश्वास था, बहुत ही उसकी आस्था थी, एक बिलीफ था गॉड के ऊपर. he believed that God's eyes see everything. उसका ये मानना था, उसका ये विश्वास था कि जो भगवान है वो सब देखते हैं. He sees everything, even what is deep in one's conscience. Hence he wrote a letter to God citing that he needed 100 pesos to sow his field again that was destroyed by the hailstorm. अब उसने उस लेटर में क्या लिखा है, that he need 100 pesos for the crop field that has been destroyed by the hailstorm, जो कि hailstorm की वजह से खराब हो गई है. ओके, now who read the letter. अब जो लेटर था वो किसने रीड किया, the postmaster read Lencho's letter addressed to God. अब जो पोस्ट मास्टर था उसने जो लेंचो का जो लेटर था जो उसने गॉड को दिया था वही उसने रीड किया था. मीन्स वो जो लेटर था, हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि जो लेटर है वो क्या गॉड तक पहुंच पाएगा और जो क्या गॉड है उसको रिप्लाई कर पाएंगे. सो जो उसका फेथ था वो ब्रेक डाउन ना हो सके, इसलिए उसने क्या किया, वो जो लेटर था गॉड को उसने भेजा था वो किसको मिला, किसने पढ़ा, वो द पोस्ट मास्टर. What did the postmaster do then? और जैसे ही उनको लेटर मिलता है तो पोस्ट मास्टर जो थे वो क्या करते हैं, इनिशियली द पोस्ट मास्टर ब्रोक आउट इनटू लाफ्टर. अब वो क्या करते हैं, जो जैसे वो लेटर को देखते हैं उनकी हंसी छूट जाती है, वो इतना हंसते हैं, ही ब्रोक डाउन इनटू लाफ्टर. But was soon moved by a seriousness of Lencho's faith in God. But soon, बहुत जल्दी ही उनको ये रियलाइज हो जाता है कि जो लेंचो का फेथ है भगवान पे वो कितना ज़्यादा है. How much he is having belief in a God, how much he is having faith in a God. So he didn't want to shake the writer's faith. अब वो जो था, वो जो राइटर का फेथ था
मीन्स राइटर कौन है यहाँ पे, लेंचो। तो लेंचो का जो फेथ है उसको वो ब्रेक डाउन नहीं करना चाहता, उसको नहीं तोड़ना चाहता, शेक नहीं करना चाहता। तो वो क्या करता है, ही केम अप विद एन आइडिया टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि ही विल कलेक्ट द मनी from his employees, from his friends and give a part of his salary and send into Lencho। तो वो क्या करता है, कलेक्ट करता है मनी, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट सब करते हैं। तो वो सबको कलेक्ट करके उसके पास काफ़ी एक जो पार्ट है जितना उसने मांगा था उसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है उसके पास कलेक्ट हो जाता है। ये जो आइडिया उसके पास आता है और इससे वो क्या करता है, उसको ऐसा लगता है कि जो लेंचो का फेथ है भगवान के ऊपर वो टूट ना जाए, इसलिए वो क्या करता है, जो पैसे हैं इवन अपनी सैलरी में से भी कुछ पार्ट वो है उसमें डाल देता है ताकि उसका फेथ टूट ना जाए। सो ही सेंड इट टू लेंचो। जैसे उसको कवर कर देता है उसमें डाल के एनवेलप में, ऊपर क्या लिखा होता है, एक सिंगल नेम लिखा होता है गॉड एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड। गॉड के सिग्नेचर पे एक सिंगल वर्ड लिखा होता है एनवेलप पे, जो कि ये शो करता है कि भगवान का रिवर्ट आया है। तो लेंचो को भेज देता है। So thank you. That's all for today. Next part of this story we will do in the next lecture along with the poems. So that's all. Thank you.